Sony Television's teleseries Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap. In all probability, Faisal Khan is the youngest Indian actor on whose role a book. First time. Let's ask the author when and how did this magic begin? Round of applause for the author. Good evening. Thank you so much. On a Saturday evening, you are here. And we are here to share why this book was made. And unless and until I share the real part, the complete story will not be there. I'm sure even Faisal is wondering why somebody would write something so much for me. Okay, yes, Faisal, you have thought like that, right? But what am I going to say is something you have to take it in a very positive way. There are many young teenagers are over here, and I'm sure your parents fire you for being a Faisal fan. Yes, I know that. Because I have had phone calls and all that telling आपका husband आपको घर से बाहर नहीं निकाल देता. Okay, thank you Noza for not doing that. Coming to the book, this whole story began on 29th May 2014. I was a fan of Faisal. I was watching the serial. I was quite hooked to it. बहुत अच्छा लगता था. But in the month of May, I was going through a lot of crisis. My husband and children are very good. They don't give me any crisis. But there was personal rejection from my parents and I was very depressed. And on 29th May, I decided suicide kar lete hain. Let me die. So afternoon time, and I'm thinking as soon as my husband and children go out, पंखे पे लटक जाते हैं. Okay. But just the evening before, I had spoken to Shahin that the shows are so good and I want to see them again. So he's like, Mummy ne farman choda hai, matlab I have to do it. So he opened the YouTube at that very moment before leaving the house. He was like, Mummy आपको देखना है, आप देखो. And I was like, ठीक है, 1-2 मिनट में तो खत्म ही करना है, रखने दो टीवी, चलने दो. So he started the YouTube. And the month of May had lovely episodes. So I started seeing them. And I saw one episode. I saw the second one. And then I thought, ye hai to Sakha Veer bhi hoga. So I went back and I started watching the other serial. And another episode, another episode, another episode. And 3 hours, 4 hours, they came back. And actually what I realized was that I forgot to die. मरना ही भूल गए. So it was like इतना deep connection. So that day तो till रात को 4 o'clock तक I watched all his episodes. And I'm a writer, basic blogger. So I said if the connection is so deep, I have to write. So I started writing. One blog I wrote, I put it up on his fan pages and it was received so well. And suddenly I had so many friends. People from Indonesia, America, England started interacting. आप जो लिखते हो हमको भी फैजल को यही बोलना है जो आप लिखते हो. And then another one, and somewhere the whole depression that I was going through totally just disappeared. So what I would say is that people, this is jokingly I tell my friends, कि लोग कहते हैं हम फैजल पे मरते हैं, I say हम फैजल की वजह से मरना भूल गए. Yes, फैजल. So Fan for the first time basically came up like that. On 29th May 2014, I started writing on him. And then I wrote 11 blogs. People started asking for it. So one fine day when I finished the blogs, my husband saw them. And he was like, it's good. Tab tak to unhone bhi nahi padhe the. So he was the one to go ahead and make a book out of it. And then next steps just kept happening. Like we went to Mr. Abhimanyu, and he fixed a meeting with Faisal, and rest is history. Book is out, people love it. There are so many people, yes, we love it. Yes. So that's the small story. What I want to tell you is, let's look at the positive side of it. Normally people blame TV, people blame the real life, but real life can have positive effect if you were to use it correctly. So thank you Faisal. If I'm alive because of you. Yes? ये मुझे स्टोरी के पीछे क्यों लिखा था इन्होंने ये बुक, मुझे अब तक इन्होंने नहीं बताया.
पर आज शायद आप कल बता देती तो मैं यहाँ पर थैंक यू। पता नहीं, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि आपने ये सोचा क्यों, आपने इतना काफ़ी टाइम लगेगा इतनी बड़ी बुक को बनाने के लिए, तो इतना टाइम मेरे लिए लिया, तो बस रीज़न जानना चाहता था और आपने कल तक नहीं बताया मुझे। काफ़ी थैंक यू सो मच, सच में। हाँ, हम लोग ने कल डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक ठीक ठीक। Thank you the author for sharing a journey. Now moving on to Faisal. अभी आपकी सबसे बड़ी फैन आपके साथ बैठी है, तो मुझे जानना है कि आप सबसे पहले फैन फॉर द फर्स्ट टाइम आप किसके बने? आप फैन फॉर द फर्स्ट टाइम किसके बने? आप किसके फैन? अच्छा, ऐसे बोला जाए तो मैं इन्हीं का बन गया क्योंकि इतनी बड़ी बुक बना दी इन्होंने। वैसे मैं सभी को फॉलो करता हूँ, जैसे हर हीरो को, क्योंकि हर हीरो में एक अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो इन्होंने बुक बनाई, लेकिन आज इतने दिन से मैं सोच रहा था सच में कि ये बुक कैसी होगी, क्या होगी, मैंने अब तक पढ़ी नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं स्टार्टिंग मतलब अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए तो अभी 2-3 बचे थे, उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा, तो मैं शायद आपका फैन बन गया अभी ये बात सुनकर। It's not every day that someone writes a book on a teleseries. So Faisal, हमें बताइए कि आपके ऊपर बुक लिखी गई है, इसके बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला? मुझे सोनल जी का कॉल आ रहा था कंटिन्यूस कि मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आपको गिफ्ट देना। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, वो न्यूज़पेपर का कटआउट लिया होगा, फिर उस पर लिखा होगा, लेकिन वो भी बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि एक बार देखते, क्योंकि इतना फोर्स कर रहे। फिर हमारे जो शो के प्रोड्यूसर हैं अभिमन्यु जी, उनके थ्रू मीटिंग फिक्स हुई और फर्स्ट डे हम मिले और वहाँ पर इन्होंने मुझे बुक दी। तब मैंने देखा कि ये बुक में कुछ बात है, क्योंकि ये ऐसी बुक नहीं है। रीडिंग करना मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैंने ये बुक ली। वो बात अलग है कि मैंने अब तक रीडिंग इसको शुरुआत नहीं की, लेकिन फर्स्ट डे हम जब मिले थे तभी मैंने देखा आप भी आए थे वहाँ पर, नुजर जी भी, इनके हस्बैंड, उनका छोटा बेबी भी। तो अच्छा लगा फर्स्ट डे बुक देख कर, हाथ में इतनी अच्छी बुक मेरे लिए लिखी गई है। फर्स्ट डे ऐसे ही कुछ मिलेगा। थैंक यू फैजल। और आपको पता चला कि आपके ऊपर बुक लिखी गई है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मतलब आपको क्या फीलिंग हुआ जब आपको पता चला कि बुक लिखी गई है आपके रोल पे? मुझे पहली बात तो अच्छा लगा कि किसी ने बुक लिखी और वो भी इतनी अच्छी कि इसके पेजेस देखो आप। तो फर्स्ट टाइम जब बुक हाथ में आई, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लग रहा था कि वो कटआउट होगा, लेकिन जब बुक मिली तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतना मेहनत करने के बाद इनकी मेहनत इसमें दिखी मुझे। बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम बुक। फिर आपकी बुक, जैसे यहाँ आपके फैंस बैठे, इन्होंने सेल्फीज लगाने शुरू किए आपके ये फैन फॉर द फर्स्ट टाइम बुक के साथ, और इंडिया में नहीं ओवरसीज भी लोग खरीद रहे थे ये बुक, और मतलब बुक ने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी। तो मतलब ऐसे जब भी सेल्फीज आ रहे थे तभी आपको कैसा फील हो रहा था? ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुक जिसने भी खरीदी है वो सेल्फी ले उसके साथ और अपलोड करे, और मैं भी उसे अपलोड कर रहा था, उनकी सेल्फी लगा था। तो ये आइडिया किसका था मुझे पता नहीं, लेकिन आप ही का था, क्या बात है। तो ये बुक इंडिया के अलावा बाहर भी लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे खुद को प्राउड फील हो रहा है, मेरी फैमिली को, मेरे गुरुजी श्रीकांत सर, क्योंकि इनके ही बदौलत मैं हूँ यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि बुक आउट ऑफ इंडिया भी बिक रही है, और इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो भी खरीद रहे लोग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। और मतलब आपके फैंस को पता चल गया कि आपके रोल पे बुक लिखी गई है, पर आपने भी लोगों को कहा होगा कि मेरे ऊपर बुक लिखी गई है आपके रोल पे, तो आपको ऐसा कोई फनी रिएक्शन मिला हो या कोई ऐसा कोई किस्सा सुना है जो आपको फनी लगा हो जब आपने किसी को कहा कि आपके रोल पे बुक लिखी गई है? ऐसा कोई मतलब हंसी मजाक का सीन नहीं हुआ, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसको कहा कि उन्होंने कहा कि वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, किसने लिखी है, तो मैंने उनका नाम बताया। ऐसा कुछ फन नहीं हुआ इसके ऊपर कि बुक बनी है तो क्या यार तेरे ऊपर बुक बनी है, वैसा नहीं। सबने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, हमें भी पता कहाँ पर मिल गई। मुझे पहले नहीं पूछा था कोई बुक पढ़ेगा मेरे ऊपर। That was the funniest thing anybody could ask an author, उसका बुक पढ़ा है सामने and he's like ये कोई पढ़ेगा मेरे ऊपर। So Faisal, I think you got your answer. Yes, people are reading it and there are so many people who want to tell you that how good it is and how nice it is. They have actually spent taken time out to come and meet you. हाँ, मुझे एक और किस्सा भी था कि somebody said कि आप इसको black and white बना दो तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, फिर हमारे जैसे लोग उसको खरीद सकेंगे। बट आई डोंट नो, ब्लैक एंड वाइट में उसका पूरा मैजिक चला रहा था। बट दैट चाइल्ड वाज सो क्यूट, ही केम विद अ चैट मैसेंजर, मैडम आई एम नॉट एबल टू, आप ब्लैक एंड वाइट कर दो बुक को। उसका ना ग्लॉसी पेपर फैजल को दे दिया है आपने, अभी आप उसको ना नॉर्मल कवर बना दो। सो ही इज़ गिविंग मी द होल लेआउट ऑफ द होल प्रिंटिंग कि आप ये बुक को पूरा कैसे बदल सकते हो। सो दैट ओके, बट ही वाज सो क्यूट, ध्रुव सिंह ने। Or Faisal, what message you have for your fans with regards to the book? खरीदो। इसे मैंने तो नहीं पढ़ी है, मैंने स्टार्टिंग की पढ़ी। सो सॉरी, फिर से सॉरी बोलना चाहूँ क्योंकि अब तक स्टार्ट, हाँ वो मैंने थोड़े आगे के 10 पेज पढ़े हैं शायद। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुक अगर आपको अच्छी लगी हो तो ख़रीदें। अगर इससे कुछ सीखने मिल रहा है, पता नहीं महाराणा प्रताप ने 1.5 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला, तो इससे कुछ सीखने शायद मिलेगा। आपने बहुत अच्छे ब्लॉग्स से ये बुक बनाई है, तो खरीदो इसे और पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए। Miss, what message do you have for the fans with regards to your book? As the book says, fan for the first time. This is for all the teenagers sitting here. जब हम बड़े हो रहे थे तो I used to see this कि my friends and all that used to अपने stars को ऐसा blood से letter लिखते थे and lot of things they used to do which I was like क्या कर रहे। So what I want to say to all the fans whoever are listening to this कि जब fan बनो तो ऐसे बनो कि अपने star को खुशी दो, वो आपके साथ एसोसिएट हो तो उसे प्राउड फील हो। ऐसे फैन मत बनो कि आपके स्टार के लिए आप एक डिस्कम्फर्ट बन जाओ। डोंट बिकम अ फैन वेयर यू गो एंड ट्रबल योर फैन कि उनके घर पे जाके दस्तक दे दिया आपने या उनके बार बार उनको फ़ोन कर दिया। व्हाट हैपेंस इज दैट स्टार्स आर स्टार्स मीन्स दे आर फॉर एवरीबडी, सो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू हैरेस देम। सो बी अ फैन इन सच अ वे कि वो आपको देख के खुश हो। या Thank you.